Today we thought कि हम थोड़ी सी बात करें about some behaviors that we routinely will punish our children for or our teenagers for, and perhaps they are not punishable behaviors. और अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? What is it that we can do? Hello, and Assalamu alaikum. We are here with you with, I have no clue, some episode of Bas 5 Minute. पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि what is it that teenagers या young adults can do to connect with their parents या understand कि उनके parents क्या बात कर रहे हैं, where are they coming from. Today we thought कि हम थोड़ी सी बात करें about जो teens की age है between 13 and 19, उसमें there are some behaviors that we routinely will punish our children for or our teenagers for, and perhaps they are not punishable behaviors. तो उसको हम किस तरीके से, वो क्यों कर रहे हैं teenagers, why are they partaking in such behaviors, किस वजह से वो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम जिसके लिए उनको पनिश करते हैं, और अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, what is it that we can do. So the first one that I want to talk about, जो बहुत ज़्यादा parents हर जगह, सिर्फ parents ही नहीं, even other community people all around, जो कि कहते हैं कि teens की या teenagers का attitude बहुत nasty हो जाता है, sarcastic हो जाते हैं, अपनी eyes roll करेंगे, they will sort of be sarcastic, or they will feel selfish, they will feel entitled, and they'll immediately punish that behavior. So it is important to understand कि the sarcasm या eye rolling जो हो रही है, या जो आपको nasty attitude लग रहा है, that's actually part of the brain growth again. They are learning, they have not mastered it, अभी उन्होंने ये master नहीं किया होता, they are learning emotional regulation, and that is why जब कोई चीज़ होती है जो उनको upset करती है या वो करती है, तो then they will respond to it with sarcasm or sass or entitlement and stuff. The idea कि हम कर क्या सकते हैं इसके बारे में is to first of all stay calm, जो सबसे मुश्किल काम है, but we have to stay calm. We should help them understand कि what are they saying, और उनकी बात सुने, and then help them sort of regulate it by modeling it on their own. कि अगर हम regulate करेंगे, हम काम रहेंगे, तो वो भी अपने emotion को regulate कर पाएंगे और उनका ये skill build हो सकेगा. The other thing that we punish regularly is कि वो अपने chores नहीं करते हैं, अपना जो हम उनको काम देते हैं वो नहीं करते हैं, unless and until हम उनको कोई 98 times nag ना करें तो वो काम नहीं करते, कमरा जो है वो गंदा छोड़ा होता है, वो chores नहीं कर रहे होते. Again, we have to understand that it's not that they don't want to, it's not that they're disrespectful, it's just that they are trying to again develop their executive functioning skills. वो नहीं, आपका जो brain है, जो मैंने पहले भी हमने बात की है काफ़ी दफ़ा, कि जो part of the brain जो planning करता है, जो चीज़ों को organize कर सकता है, वो अभी तक develop नहीं हुआ होता. तो again, how is it that we can help? We can help break the chores into smaller pieces, छोटे छोटे chunks में, कि आप ये कर लो, या ये पहले बस सिर्फ इतना कर लो, या अपने अलमारी का सिर्फ एक दराज को आप organize कर लो एक दिन में. दूसरा helping set up routines या something with them, instead of saying कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, उनके साथ मिलके कि बेटा आप क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकती हो, and उसको किस तरीके से हमने organize करके देना है, उनके लिए मुश्किल होगा ये खुद से करना. तीसरी चीज़ जो हम अक्सर पनिश करते हैं अपने टीनेजर्स को इज़ अबाउट आर्ग्यूइंग बैक, जो हमें लगता है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या डिफायंस है या बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं. सो आर्ग्यूइंग अबाउट एवरीथिंग. अगेन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग की, जो उनकी डेवलप हो रही है, और अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, कि मैं क्या हूँ या मैं क्या सोचती हूँ या मेरा व्यू पॉइंट्स क्या हैं दुनिया के बारे में. तो जब आप कोई बात करते हैं तो देर ईगर टू टेस्ट अपने सेफ लोगों के साथ कि उनकी क्या सोच है डिफरेंट फ्रॉम यू. सो अगेन इंस्टेड ऑफ पनिशिंग इट, बिकॉज आप वहीं पे उनकी फिर आइडेंटिटी फॉर्मेशन या क्रिटिकल थिंकिंग को रोक देते हैं, या फिर वो आपसे फिर बात करने से घबराते हैं. इंस्टेड ऑफ punishing, if you feel कि they're disrespecting or arguing, then the thing to do is to कि आप बैठ के आराम से उनकी बात सुने,
उनका व्यू पॉइंट सुने, आप आराम से अपना व्यू पॉइंट उनको बताएं और आप कहें कि ठीक है बेटा, आपको शायद ये पसंद नहीं आएगा मेरा व्यू पॉइंट, बट मेरा व्यू पॉइंट ये है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन, एंड सो दैट इट डेवलप्स टॉलरेंस एंड द कैपेसिटी कि वो किस तरीके से अपनी बात भी दूसरे को कह सकते हैं इन रिस्पेक्टफुल मैनर, और दूसरे की बात भी किस तरीके से सुन लेते हैं, एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर एक को हर चीज़ पे अग्री करना ज़रूरी नहीं होता. द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज जोनिंग आउट. टीनेजर्स बहुत ज़्यादा अक्सर हमें लग रहा होता है कि जोन आउट कर जाते हैं, बात कर रहे होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं पे होता है, और वो भी हम उसको भी पनिश करते हैं. अगेन, इतना ज़्यादा कॉग्निटिव ओवरलोड होता है टीनेजर्स के ब्रेन में कि दे सो मेनी ओवरवेलम हो चुके होते हैं, वो इमोशन से, अपने होमवर्क से, अपने दोस्तों से, 10,000 चीज़ें हो रही होती हैं. दैट इज़ वाई इट फील्स लाइक दे आर जोनिंग आउट. The thing to do at that time again is to sit down and get them at a time जब आपको लगे कि वो इतना ज़्यादा busy नहीं है. Help them break down कि आप जो बात करें अपनी चीज़ को simple रखें, बिल्कुल simple रखें, छोटी सी बात जो भी आपने मैसेज करना है, and then help them clear कि उनके दिमाग में और क्या क्या चीज़ें and why they have to prioritize जो आप उनसे बात करना चाह रहे हैं. We're going to stop here, and we will rejoin next week with similar conversations. Tab tak ke liye stay curious, keep asking questions, and memento vivere, remember to live.